السلام علیکم، میرا نام عائشہ احمد ملک اور میں ریان اسکول اسلام آباد ایف ایڈ کیمپس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹرویو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان بن شاہد۔ آئیں سب سے پہلے ان کا تھوڑا سا انٹرو لیتے ہیں۔ جی سلمان۔ السلام علیکم، میرا نام سلمان شاہد ہے اور میں ریحان اسکول اسلام آباد RSIF کیمپس کا فاؤنڈیشن لیول پر اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے ریحان اسکول جوائن کیے ہوئے تقریباً 2.5 ماہ۔ تو سلمان، آپ کو ریحان اسکول جوائن کیے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کو باقی اسکولوں سے کیا ادھر فرق نظر آ رہا ہے؟ بالکل ہاں، یہاں پر جو ہے باقی اسکولوں سے کافی فرق ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا باقی اسکولوں میں پریکٹیکل چیزیں نہیں ہوتی، وہاں پہ صرف تھیوری سکھائی جاتی ہے، پھر اس میں صرف آپ کو جو ہے آپ کو بلکہ لیپ ٹاپ موبائل انٹرنیٹ سے دور رکھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ریحان اسکول میں یہاں پر لیپ ٹاپ موبائل اور انٹرنیٹ ہیڈ فون یہ چیزیں انہوں نے بالکل جو ہے نا کمپلسری کی ہوئی ہیں، لازمی ہونی چاہیے بچوں کے پاس، تب بچہ جو ہے نا سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا فرق یہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ نظر آیا ہے ریحان اسکول میں باقی اسکولوں میں۔ جی سلمان، آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج 20 سال ہے۔ تو آپ ساتھ دوسری پڑھائی کنٹینیو رکھی ہوئی ہے یا پھر صرف یہ والی مطلب ریحان اسکول ہی آتے ہیں؟ میں نے جو ہے 2023 میں میٹرک کمپلیٹ کر کے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے ڈیجیٹل اسکلز وغیرہ سیکھنے پر توجہ دی۔ میں نے سیکھی تھی امیزون کا ہول سیل ماڈل میں نے سیکھا ہے، پھر اس کے بعد میں نے SEO سیکھی ہے، اس کے بعد پھر جی ڈیجیٹل جی مارکیٹنگ سیکھی ہے، میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے یہاں سے پہلے 9 ماہ جو ہے کال سینٹر میں کام کیا ہے، اس کے بعد پھر میں یہاں پر آیا ہوں۔ اوکے، مطلب آپ کو ادھر آنے سے پہلے بھی کافی ایکسپیرینس ہے یہ اے آئی کے متعلق۔ تو آپ کو یہاں پر آ کے یہاں پہ باقی دوسرے اسکولوں کے مقابلے ادھر بچوں کے کانفیڈنس میں کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ سیم ہے یا پھر ادھر کافی فرق ہے بچوں میں؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ باقی اسکولوں میں جو آپ کو پتہ ہے وہاں پر بچے ایک دوسرے سے مطلب میم سے کوشچن کرنے میں یا ان کے کوشچن کا آنسر دینے میں تھوڑا گھبراتے ہیں۔ میں خود ایسا تھا، میں جب 9ویں کلاس میں تھا، 9ویں 10ویں میں، اگر جب ٹیچر میرے سے سوال کر رہا ہوتا کہ مجھے اس کا جواب آتا بھی ہوتا تو میں اس کا جواب نہیں تھا دے پاتا، کیونکہ میرے میں تو کانفیڈنس تھا ہی نہیں۔ میرے ساتھ والے بچے تھے ان کو میں بتا دیتا تھا، وہ اس کا آنسر دے دیتے تھے، لیکن میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اور یہاں پہ میں نے دیکھا بھی ہے، یہاں پر جو ہے باقی اسکولوں میں آپ کو پتہ ہے وہاں بچوں کا اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ اتنے کھل کے بات نہیں کرتے ہیں ٹیچروں کے ساتھ یا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ۔ یہاں پر بچے جو ہیں ان کو لازمی جو ہے ایک چیزوں پہ زور دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے ٹاسک کریں، جیسے ابھی ہم انٹرویو کر رہے ہیں، انٹرویو کرنے سے بھی جو ہے ہمارا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے۔ پھر کالج سے بات کرنا، اس کے بعد اور بھی کافی سارے ٹاسک ایسے ہیں جس سے بچوں کا کانفیڈنس کو بوسٹ اپ کیا جاتا ہے۔ یہ مجھے جو ہے نا بہت اچھی بات لگی ہے اس میں۔ جی جی، آپ ریحان اسکول کے کون سے کیمپس میں آتے ہیں؟ میں آتا ہوں ریحان اسکول کے F8 کیمپس میں، اسلام آباد میں 2 کیمپس ہیں، ایک دورکول میں اور ایک F8 میں ہے۔ F8 میں سینٹورس کی بیک سائڈ پر ہے، مسجد رحمۃ اللہ۔ جی سلمان، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ایک منٹ۔ تو آپ سے اگلا کوئی سوال ہے، آپ کو ریحان اسکول آ کے ابھی تک کیسا لگا؟ آپ کو 2.5 مہینے ہو گئے، آپ نے ابھی تک کیا سیکھا ریحان اسکول میں؟ اچھا، مجھے سوال کی طرف سمجھ نہیں ہے، آپ کائنڈلی سوال ریپیٹ کریں۔ میرا سوال ہے کہ آپ کو 2.5 مہینے ہو گئے ادھر آتے ہوئے اسکول، تو آپ نے ادھر ابھی آگے کیا سیکھا؟ مطلب آپ کون سے لیول، ادھر کیا ہوتا ہے، کلاسز ہوتی ہیں یا لیول ہوتے ہیں، کیا حساب ہے ادھر کا؟ بالکل، میں جب سے ریحان اسکول میں مجھے تقریباً 2.5 ماہ ہو چکے ہیں۔ 2.5 ماہ میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، کینوا پوسٹ وغیرہ بنانا، اس کے بعد ChatGPT کا یوز کر کے پھر ہم اسٹوری پوسٹ بناتے ہیں، پھر کوڈنگ ٹاسک ہو گئے، کلاؤڈ AI سانگ بنانا، جی انٹرویو کرنا، کالج سے انگلش میں بات کرنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سے پہلے میں نے ابھی کچھ جو ہے میں اس سے پہلے جانتا تھا، کافی ساری چیزیں میں نے یہاں پر آنے کے بعد سیکھی ہیں۔ اس طرح انٹرویو یہاں سے پہلے میں نے کبھی کسی سے انٹرویو نہیں کیا تھا اس کا لائیو فیس ٹو فیس بیٹھ کے، پھر اس کے بعد جو ہے میں نے کبھی یہ سانگ وغیرہ نہیں بنایا تھا، پھر ChatGPT کا یوز کر کے پھر ہم کوڈنگ ٹاسک کرتے ہیں کلاؤڈ AI سے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے یہاں پر نہیں سیکھی، اور ابھی میں فاؤنڈیشن لیول پر ہوں۔ فاؤنڈیشن لیول کی 2 بکس ہوتی ہیں، فاؤنڈیشن بک 1، فاؤنڈیشن بک 2، اس کے بعد پھر لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4، جی لیول 4 تک ہے یہ یہاں اسکول میں۔ اور میں ابھی فاؤنڈیشن لیول پر ہوں، اور میں 2.5 ماہ میں تقریباً بک میری مکمل ہو چکی ہے۔ میرے صرف انٹرویو رہ گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے میری بک مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں بک 2 پہ چلا اوکے، جاؤں جی جی۔ آپ نے جو پڑھائی کوئٹ کر دی ہے دوسری، آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ کسی نے آنا چاہے تو پڑھائی اپنی ساتھ دوسری جو ہے وہ ساتھ کنٹینیو رکھے یا پھر صرف یہ ریحان اسکول والی کرے؟
बिल्कुल, अभी बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो क्या नाम है, दूसरी पढ़ाई में किस तरह का परफ़ॉर्म कर रहा है, वो शौक से पढ़ भी रहा है या सिर्फ़ घर वालों के ज़ोर उसको घर वाले प्रेशर दे रहे हैं कि आप पढ़ो, दूसरी पढ़ाई जो है वो करो ही करो साथ-साथ में। अगर बच्चा चाहता है कि मैं दूसरी पढ़ाई को भी साथ रखूँ, मेरा छोटा भाई है, वो फर्स्ट ईयर में है, तो साथ जी फर्स्ट ईयर की तैयारी भी कर रहा है और जो है वो साथ-साथ जो है स्कूल भी आता है, मेरे साथ ही आता है, मेरे साथ ही जाता है, बराबर हम दोनों आते जाते हैं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे-छोटे बच्चे भी हैं जो 7 5वीं क्लास में, 6वीं क्लास में, 9वीं में, मैट्रिक में और साथ ही तालिब को भी साथ लेकर चल रहे हैं और रेहान स्कूल में भी आके प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कोई बच्चा आके सीखना चाहता है जिसने पढ़ाई छोड़ दी है, अगर वो कह रहा है कि मैं जो है 5वीं पढ़ा हूँ, 6वीं पढ़ा हूँ, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो है जी ना ये खुशी वाली बात है, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे देखे कि यहाँ पे 5वीं 6वीं क्लास फेल बच्चे हैं बैठे हुए हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसके अंदर। लाजमी नहीं है कि आपने मैट्रिक की हो, पढ़े लिखे हो तब भी सही है, नहीं पढ़े लिखे तब भी आप यहाँ पे आके कुछ ना कुछ सीख सकते हो और जो है अच्छा सीख सकते हो और अच्छा जो है परफॉर्म कर सकते हो जो है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी ज़रूरी है। बिल्कुल लाजमी है। आप जब से यहाँ पे आ रहे हैं, आपको यहाँ के बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल कैसी लगी है? हाँ, बिल्कुल मैंने यहाँ पर देखा काफ़ी सारे बच्चे जब न्यू आए थे या जब उनके शुरू कर दी थे, तो वो उस तरीके से बात नहीं थे कर पा रहे एक दूसरे के साथ या उस तरीके से जो है फेस नहीं कर पा रहे थे इन चीज़ों को, इंटरव्यू को, फिर जो है कॉलेज से बात करना। फिर उसके बाद जब वो उन्होंने थोड़ा टाइम दिया, प्रैक्टिस की, उसके ऊपर अपने मिस्टेक्स को दुरुस्त किया, तो भी जो है वो बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे कम्युनिकेशन में। एक दूसरे से बात करने में भी काफ़ी अच्छा जो है वो अपनी साइड दिखाते हैं और दूसरा ये टास्क करने में भी जो है वो काफ़ी अच्छा जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, रेहान स्कूल में क्रिएटिविटी है या फिर नहीं? बिल्कुल है क्रिएटिविटी यहाँ पर, बच्चों को जो है उनके शौक के मुताबिक चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह भी हम ये चीज़ें सीख रहे हैं, ये फाउंडेशन बुक है, उसके बाद फाउंडेशन बुक 2 है, उसके बाद फिर आपको एक फील्ड दी जाएगी जो आप सिलेक्ट कर रही हैं। मिसाल के तौर पर आपने जी सुना होगा जिस तरह बच्चों के नाम है यहाँ पे साइंस फैक्ट्री वाला, फिर उसके बाद है कुछ एआई वाला, उधर एआई वाला, फिर उसके बाद बहुत सारे हैं उनके नाम के जी साथ वाला लगता है। तो उन बच्चों को जी चॉइस दी जाती है कि आपने एक मसले को पकड़ना है या एक आपने फील्ड को पकड़ना है, उस फील्ड के ऊपर ही आपने प्रॉपर काम करना है और उसी के अंदर से ही जी आपने जो है उसी मसले को पाकिस्तान के अंदर हल भी करना है और उस मसले के मुताबिक जितने भी लोग हैं उनके मसले के मुताबिक उनको भी आपने गाइड करना है। तो ये जी चीज़ जी है, यहाँ पर क्रिएटिविटी बिल्कुल जो है क्रिएटिविटी को सपोर्ट किया जाता है। आपको रेहान स्कूल की सफाई का माहौल कैसा लगा? क्योंकि अक्सर स्कूलों में यही कंप्लेन होती है कि यहाँ की सफाई बिल्कुल गंदा माहौल है। आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? सफाई का अच्छे से ध्यान रखा जाता है या फिर नहीं? बिल्कुल यहाँ की सफाई का माहौल भी बहुत अच्छा है क्योंकि पहली बात तो है मस्जिद है, आपको पता है मस्जिद तो बिल्कुल भी जो है उसमें थोड़ा सा भी गंदा बर्दाश्त के काबिल नहीं है। यहाँ मस्जिद है जी और दूसरा यहाँ पे सफाई का भी बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, तो बिल्कुल साफ सुथरा स्कूल जी। है। यहाँ पे आपको बच्चों का टीचर्स के साथ और टीचर का बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा लगा? मतलब अच्छा टीचर्स का बिहेवियर या फिर नॉर्मल एवरेज ही है? नहीं, यहाँ पे मैंने देखा है बाकी स्कूलों के मुताबिक, जैसे आपको पता है कि बच्चे टीचर्स जो हैं बच्चों के साथ कैसे जो है पेश आती हैं। आपको पता है उनसे कि कुछ दफ़ा कोई चीज़ पूछ लो, बहुत बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जो आपको जो है ना 10 दफ़ा पूछने में भी गुस्सा करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टीचर जी ऐसे होते हैं आप उनसे एक दफ़ा पूछ लो तो वो गुस्सा कर जाते हैं, आपको उस तरीके से नहीं समझाते हैं। यहाँ पे ऐसा जी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे आप उनसे 10 दफ़ा पूछे, आप घर चले जाएँ, घर जाके भी आप उनको कोशिश करेंगे कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपको वहाँ पर भी ये चीज़ गाइड करते हैं टीचर्स जो हैं। बच्चों के साथ इनका जो है माहौल भी बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे जो है कोशिश की जाती है कि बच्चों के अंदर जो है वो फ्रेंडली माहौल बनाया जाए, ना कि बच्चों को जो है ना प्रेशराइज़ किया जाए, ज़ोर दिया जाए, उनको डाँटा जाए, किसी को कोई पनिश किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बच्चों को बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है मोबाइल, लैपटॉप, ये जो बच्चों को जी शौक होता है चीज़ें इस्तेमाल करने का, तो वो बच्चों का भी टीचर के साथ बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर, मतलब उनके साथ भी बहुत अच्छा बातचीत करते हैं, समझाते हैं और जो है टीचर से भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा जो है ना वो कनेक्शन है आपस में। जी। यहाँ पे क्या हिसाब है? मतलब टीचर्स आपको सिखाती हैं या फिर यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स हैं या फैसिलिटेटर्स हैं, क्या हिसाब है? मतलब आपको कौन सिखाता है? आपने किससे मतलब हेल्प ली जब आप नए नए आए थे? क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब यहाँ बाकी स्कूल में आपको पता है वो सिर्फ टीचर्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स बिल्कुल जी टीचर के ऊपर जो है वो डिपेंडेबल होते हैं कि वो हमें पढ़ाएंगे, वो सिखाएंगे, उन्हीं को जो है याद। ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो है छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको फैसिलिटेटर कहा जाता है, फैसिलिटेटर होते हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि वो फैसिलिटेटर आपकी एज का होगा, आपसे छोटा भी हो सकता है। अब जब मैं यहाँ पर नया था तो मेरे छोटी उम्र के बच्चे जो है मुझे सिखा रहे थे, 12 साल के, 14 साल के, 16 साल के बच्चे जो है मुझे ये टास्क करना सिखा रहे थे। और यहाँ पे यही होते हैं, यहाँ पे बच्चे बच्चों को सिखाते हैं, यहाँ पे टीचर नहीं होते, क्योंकि
पहली बार है जब आपके एक उम्र का बच्चा या आपकी उम्र से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा बच्चा आपको सिखा रहा होगा तो आप शौक से सीखते हैं। आप जी पहली बात आप इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि भाई आपको पता है मेरी एज क्या है, कर सकता है। अगर ये मुझे सिखा रहा है तो फिर आप समझ जाओ कि भाई अगर वो छोटा बच्चा मुझे सिखा रहा है तो फिर मैं बड़ा हूँ तो मैं क्यों ये चीज़ सीख सकता। यहाँ पे ऐसे ही जी। हमें बच्चे बच्चों को सिखाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप अभी क्या फैसिलिटेटर भी हैं या फिर अभी सिर्फ स्टूडेंट ही हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पे फैसिलिटेट भी करता हूँ बच्चों को। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मैं यहीं पर होता हूँ। कुछ बच्चे आते हैं न्यू या कुछ बच्चे मुझे मुश्किल पेश आती है, चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, उन बच्चों को भी मैं गाइड करता हूँ। और जो बच्चे नहीं आते हैं उनको भी हम सिखाते हैं कि भैया आपने ऐसे करना है। अभी मैं अकेला भी नहीं, मेरे साथ 2 लड़के और भी हैं, उनको भी मेरे साथ होकर जो है क्लास मैनेज करता हूँ। आप क्या नाम है, क्या मतलब आपको रेहान स्कूल में और दूसरे स्कूलों में अभी तक कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नज़र आया या फिर अभी नहीं आया? बिल्कुल, आपको पता है बाकी स्कूलों में जो है अब आज से 20-25 साल 30 साल पुरानी जो है पढ़ाई सिखाई जा रही है। जिस तरह वहाँ पर जो है जी एक ही चीज़ जो हमारे दादा अबू ने या हमारे अबू ने सीखी थी वो चीज़ हमें सिखाई। आपको पता है आज का दौर जी कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है। हर कुछ महीने बाद या हर कुछ हफ्तों बाद कोई ऐसी चीज़ नई आ जाती है जो बिल्कुल हमारे मतलब हमारी सोच से भी परे होती है। वो चीज़ें हम जी कब सीखेंगे जब हम जो है चैटजीपीटी, एआई ये सब चीज़ें हम यूज़ करना सीखेंगे, इनके साथ हम जुड़ेंगे तब हमें पता लगेगा भाई वो चीज़ें बनी कैसे हैं, फिर जी उसका मकसद क्या है, वो चीज़ें हम बना कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली रेहान स्कूल में एडवांस जो है वो क्या नाम है एडवांस लर्निंग होती है। यहाँ पर बच्चों को एडवांस स्किल्स सिखाई जाती हैं, एडवांस यहाँ जी पे एजुकेशन है। बाकी स्कूलों में आपको पता है वहाँ पर कंप्यूटर लैब भी होती है, बच्चों को कंप्यूटर के बारे में भी सिखाया जाता है, लेकिन वो मेरे ख्याल में दिन में या हफ्ते में 20-25 मिनट टाइम देते हैं बच्चों को, लेकिन मेरे हिसाब से वो जी काफ़ी नहीं है। ऐसी बात है। यहाँ पे टोटल थ्योरी है, यहाँ पर यहाँ स्कूल में सिर्फ प्रैक्टिकल है। थ्योरी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको लिखवाया बोर्ड पर लिखवाना है ये वो, जी लिखना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपने करके दिखाना है। ये चीज़ सबसे बड़ा डिफरेंस देगा आपको मेरे हिसाब से, तो बाकी स्कूलों में नहीं है। यहाँ पर काम कैसे चेक होता है, मतलब रोज टीचर्स को चेक करवाना होता है या फिर ऑनलाइन कहीं पे कोई पोर्टल वगैरह पे डालना होता है? यहाँ पे क्या हिसाब है मतलब काम चेक करने का, या फिर आपने करके बस चले जाना है, कोई चेक ही नहीं करने वाला? बिल्कुल यहाँ पर जो है बाकी स्कूलों में आपको पता है जिस तरह आप बच्चे जो है घर से होमवर्क करके लाते हैं, कॉपी पर लिख कर लाते हैं, तो वो टीचर जो है वहाँ पर कॉपी पे साइन करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बच्चे जो है यहाँ पे एक स्पेशल पोर्टल है, वेबसाइट है इस्लामाबाद की बच्चों के लिए, जिस पर वो है अपने जो टास्क किया होता है उस टास्क का लिंक वहाँ पर डालते हैं। तो वहाँ पे टीचर या फैसिलिटेटर है, बल्कि जी टीचर ही है जो वो यहाँ पे बच्चों के टास्क चेक करते हैं कि वो जो बच्चे टास्क कर रहे हैं अगर वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो उनके टास्क वहाँ पे अप्रूव होते हैं, रिजेक्ट होते हैं। अगर ठीक है तो अप्रूव हो जाते हैं, जी अगर गलत है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। उनके साथ रीज़न लिख देते हैं कि आपका ये मसला है वीडियो में, आपका ये मसला है इस लिंक में, आपका ये मसला है आपके कोर्स में, तो वो नीचे लिख देते हैं और बच्चों को बता देते हैं कि भाई आपने इसको ऐसे करना है। तो ये यहाँ पे ऐसे टास्क चेक किए जाते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल एक बुक भी है बच्चों को दी जाती है, वो बच्चों का जी वहाँ पर जो है जो टास्क दिन में करते हैं वो मैम को दिखाते हैं और मैम उस टास्क के आगे साइन भी करती हैं। और जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर जो काम किया होता है वो भी चेक होता है पोर्टल के जरिए। आपने रेहान स्कूल का नाम कब सुना? मैंने बल्कि रेहान स्कूल का नाम रेहान सर से जानना है। मैं वीडियोस देखता रहा काफ़ी अच्छे से। जब मैंने उनकी वीडियोस जी देखी तो मुझे पता लगा कि ये ब्रांच है पेट में, तो उसके बाद जो है यहाँ पर रेहान स्कूल हम्म। आप आपने रेहान स्कूल का नाम कैसे सुना, ये प्लीज एक बार दोबारा आंसर रिपीट करिएगा, आपकी आवाज़ कट रही है। मैंने रेहान सर का नाम सुना था दरअसल फेसबुक से। रेहान सर की वीडियोस वगैरह मैं देखता था तो मुझे वहाँ से पता लगा रेहान स्कूल के बारे में। उसके बाद अच्छा फिर मैंने यहाँ पर आके रेहान स्कूल ज्वाइन किया। ठीक हो गया। तो मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ पे आपने अपने चाचू से आपका ये रेहान स्कूल के बारे में सुना। सही। आप हमें बता सकते हैं रेहान स्कूल का मकसद क्या है? बिल्कुल रेहान स्कूल का मकसद ये बिल्कुल मतलब सीधा और साफ मकसद है। ये बच्चों को जो है उनके फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहते हैं। रेहान सर जो है बिल्कुल ये जो है फोकस करते हैं उन बच्चों पर जो छोटे हैं, मतलब 8 साल से लेकर 16 साल तक, 8-9-10 साल के जो बच्चे हैं उनको फोकस करते हैं ताकि वो, जी क्योंकि आपने छोटा बच्चा होता है जल्दी चीज़ें पिक करता है। अभी हमारे सामने यहाँ पर मिसालें हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं हमसे, जी वो काफ़ी जल्दी जो है चीज़ों में आगे निकल जाते हैं। तो जब वो बच्चे अपने आप को मतलब अभी उनको अगर उम्र मिसाल की तो 11 साल है 12 साल है, अगर वो 4-5 साल लगाते हैं तो 12 जमा 5 17 साल,
17-18 जी, साल की उम्र में उनके पास इतना तजुर्बा आ जाएगा कि जो 18 साल के या 20 साल के बंदे के पास नहीं होगा। तो जब वो उस चीज़ पे अमल करेंगे, उन चीज़ें सीखेंगे, तो फिर ज़ाहिर बात है वो उससे आगे आने वाले कोई फ़ायदा भी उठाएँगे, कमाएँगे भी, अपने लिए भी फ़ायदा मतलब अपने लिए भी जो है वो अपॉर्चुनिटी क्या नाम है लाएँगे और अपने घर वालों के लिए भी जो है आसानियाँ पैदा करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए जो है यहाँ जी। स्कूल जो है उसका मकसद यही है कि बच्चों को जो है फ्यूचर के लिए तैयार करें। अगर हम आपसे आपका ओपिनियन पूछना चाहें कि आपके ओपिनियन से स्किल सीखना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आपको पहले मैट्रिक या ग्रेजुएशन करना ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे हिसाब से जो है इंटर आपने करना। अगर आपको पढ़ाई में भी मतलब शौक है कि आप चाहते हैं कि मैं जो है अपनी स्टडी को भी साथ जारी रखूँ, तो आप बिल्कुल करें उसको। लेकिन मैं जो जी, स्किल है वो बिल्कुल लाज़मी है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देंगे और उस पर आप जो 15-20 साल अपनी उम्र के लगा देंगे, 20-25 साल, आप जब स्किल की तरफ आएँगे, आपको जब ज़रूरत पड़ेगी, क्या नाम है, पैसे कमाने की, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आप चाहते हैं कि मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, फिर आप जो है जी, आपके लिए पढ़ाई सिर्फ काम नहीं आएगी, आपको फिर स्किल की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो वक़्त नहीं होगा कि आप स्किल सीखें, आप स्किल सीख के मज़ीद 5 साल लगाएँ, 30 साल की उम्र में, मतलब आपकी आधी ज़िंदगी जी, सिर्फ जो है ये चीज़ें सीखने में लग जाएगी। आप ऐसा करें कि आप छोटी उम्र से ये चीज़ें साथ लेकर चलें, आप स्किल सीखें, मतलब आप अगर बच्चा है अगर वो 13 साल का, 14 साल का, अगर उसी वक़्त से इन चीज़ों के साथ जोड़ दिया जाता है, तो जब वो 20 साल का या 25 साल का होगा, तो वो एक ऐसे जी, जो है मरहले पे पहुँच जाएगा जहाँ पे उसे चीज़ें मुश्किल लगेंगी। क्योंकि उसने ये चीज़ें पहले से सीखी हुई है, उसने इतना टाइम जिस चीज़ में लगा दिया है, उसके लिए बिल्कुल खेल की तरह हो जाएगा। जी। तो मेरे वो हिसाब फिर से एक जो ऐसी स्किल है, उम्र वो ज़रूरी है। जी, वो फिर एक ऐसी उम्र पे पहुँच जाएगा कि वो बस जॉब की तलाश में होगा, कोई जॉब मिले और वो जॉब करे। बिल्कुल। तो आपने कोई सोचा आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? बिल्कुल, मैंने जो है अपनी जब मैट्रिक की उसके बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, तो मैं अपने आप को कुछ वक़्त देना चाहता हूँ यहाँ पर रेहान स्कूल में कि मैं देखता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रास्ते आ जाते हैं। जी, मैं एसईओ में जाना चाहूँ, एसईओ भी कर सकता हूँ, उसके बाद फिर अगर मैं अमेज़न में ई-कॉमर्स में जाना चाहूँ, वो भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं जी, थोड़ा-सा वक़्त दूँ अपने आप को, मैं देखूँ मैं किसमें बेहतर परफ़ॉर्म कर सकता हूँ, तो मैं उस एक फ़ील्ड को सिलेक्ट करके जो है मैं उसमें जो है उसको आगे लेके चलूँ और उसमें उससे जो है फ़ायदा उठाऊँ। आपको कोई ई-कॉमर्स के बारे में कुछ इतनी नॉलेज है या फ्रीलांसिंग के बारे में जो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें? बिल्कुल, फ्रीलांसिंग ऐसा है जैसे कि आपके पास एक स्किल है और आप जो है उस स्किल से किसी और को मतलब उस स्किल से आप किसी और की मदद करें या उस स्किल को आप किसी और को बेचें। ताकि तौर पर अगर आपको आती जी, है वीडियो एडिटिंग, आप किसी के लिए वीडियो एडिट करके दें, उसको फ्रीलांसिंग कहेंगे, आपने किसी के लिए काम किया। आप उस जी, काम के बदले जो है आपको वो आपको पैसे दे देगा आपके। फिर फ्रीलांसिंग आप अगर किसी कंपनी के नीचे काम कर रहे हैं या किसी बड़ी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आप उसको भी अपने स्किल के ज़रिए आप उसका उनका भी काम करेंगे, उनकी वीडियो वीडियो वगैरह एडिट्स करेंगे, तो उसमें भी आप जो है अपनी सर्विस दे के उनसे जो है अर्न करेंगे। ये होगी फ्रीलांसिंग। उसके बाद आप अगर ई-कॉमर्स की बात करें, ई-कॉमर्स ऐसा जैसे जी, जो है आप ऑनलाइन चीज़ें बेचना, आपने सुना होगा अमेज़न के बारे में, शॉपिफ़ाई के बारे में, दराज़ के बारे में, आप उसके ऊपर अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं। अभी मिसाल के तौर पर आप कंघी बेच रहे हैं, कंघी आप अगर आप मिसाल के तौर पर दुकान खोलेंगे यहाँ पर इस्लामाबाद में आपसे कौन लोग खरीदने आएँगे? इस्लामाबाद के रिहायशी होंगे, हाँ जी, आपकी दुकान के इर्द-गिर्द लोग होंगे, वो आपकी दुकान पे चीज़ खरीदने आएँगे, या आप हद मार ले रावलपिंडी से कोई आ जाएगा। इंडिया से कोई नहीं जी। आ सकता इस्लामाबाद आपकी चीज़ खरीदने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं आ सकता, यूनाइटेड स्टेट से कोई दूसरे नहीं आ शहरों से सकता। आ सकते हैं लेकिन बाहर कहीं से नहीं आ सकते। बिल्कुल, अगर आपकी ई-कॉमर्स पे दुकान है, अगर आपकी ई-कॉमर्स पे दुकान है, तो आपकी पूरी दुनिया से कोई भी आके कोई चीज़ खरीद सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है शॉपिफ़ाई पे अपना स्टोर बनाते हैं किसी मुल्क के अंदर, आप मुल्क के अंदर जी, बनाएँगे मिसाल के तौर पर यूएसए में, लेकिन आप बैठे पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बैठ के आप यूएसए के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और यूएसए के लोग आपकी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं यूएसए में किसी भी जगह बैठ के। इसे ई-कॉमर्स जी। कहते हैं। आपका ओपिनियन क्या है कि आपको नए-नए स्किल सीखने चाहिए या फिर जो एक स्किल अगर कोई सीख रहे हो तो उसी पे फुल मेहनत करो मतलब एक जो सीख रहे हो उसी पे टाइम लगाओ या फिर अलग-अलग नए-नए स्किल्स आपको सीखना ज़रूरी है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो है आप एक स्किल पकड़ो और उसी एक स्किल के ऊपर तवज्जो दे के उसी के अंदर महारत हासिल करो। जब आप वो चीज़ सीख जाओ, आपको लगेगा भाई बस इसमें मैंने अपना 100 का 100% दे दिया है और जी, मुझे पता है कि भाई इससे मज़ीद आगे कुछ भी नहीं है। मैंने इतना सीख लिया है कि मैं जो है इससे फ़ायदा उठा सकता हूँ और मैं इसको मतलब इसको इतना टाइम ना दूँ और मैं कोई और चीज़ सीख सकता हूँ। फिर आप जो है किसी दूसरी स्किल के ऊपर जा सकते हो। अगर आप कहो कि नहीं भाई मैं ये भी सीख लूँगा, वो भी सीख लूँगा साथ एक मतलब 3-4 जनों को आप बैठे लेके चलो, तो वो ऐसी बात है जैसे आप 4 कश्तियों पे 2 कश्तियों का सवार हो। फिर वो 2 कश्तियों का सवार जो है समुद्र के किनारे किनारे नहीं लगता, वो हमेशा डूब जाता है। इसलिए आप एक स्किल के ऊपर तवज्जो दो, उसी के अंदर महारत हासिल करो और उसी से फ़ायदा जी, उठाओ। जब आपको लगे कि भाई बस ये इतना मतलब मैंने कर लिया है कि जो मैं अगर इसको टाइम ना भी दूँ तब भी चलेगा,
پھر آپ دوسرے اسکل کے اوپر جاؤ. میرے سے بھی یہی غلطی آپ ہوئی ہے. میں جو ہے کافی سارے اسکل سیکھتا رہا ہوں. اس وجہ سے جو ہے میں ابھی تک جو ہے میں نے کسی ایک اسکل میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پایا. تو میرا ابھی تک میری یہی سبق سیکھی ہے کہ آپ ایک چیز کو کرتے ہو. مطلب آپ کے پاس اپنا بھی کافی تجربہ ہے 5-6 سال کا. ایسا ہی ہے. اگر آپ کو ریحان اسکول میں کوئی چیز بدلنی آپ کا چاہتے ہیں کہ یہ بدلی جائے تو آپ کیا کوئی چیز ہے کہ آپ جو چاہ رہے ہیں کہ یہ بدلی جائے ریحان اسکول میں؟ بدلنے ریحان اسکول میں فی الحال بدلنے کی کوئی ایسی میرے ذہن میں نہیں آ رہی. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر بچوں کی مطلب بچوں کے کلاس ٹائم میں یا ان کی بک میں ایکٹیویٹیز شامل کی جائیں, سرگرمیاں جی شامل کی جائیں, جس سے جو ہے بچے پرفارم کر کے دکھا سکیں کہ بھائی یہ کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اور کچھ آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے بچے ہماری کلاس میں ایسے ہوتے ہیں جو بہت قابل ہوتے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آ پاتے. جب آپ ایکٹیویٹیز کے سامنے رکھتے ہیں تو ایکٹیویٹی پرفارم کر کے پتہ لگ سکتا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے جی بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, کون سے بچے جو ہے وہ مڈل رینج میں ہے, کون سے بچے جو ویک ہے. پھر ہمارے سامنے جو جی ہے ایک چارٹ بن کے آ جائے گا کہ بھائی یہ بچہ جو ہے یہ بہت لائق ہے, یہ بچہ جو ہے مڈ رینج میں ہے, اور بہت یہ بچہ جو بہت کمزور ہے. ہمارے سامنے جی پھر جو کمزور بچہ ہے اس کو بھی باقی کے ساتھ لے کے چل سکیں, اور جو بچے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ سکیں. اس لیے جو ہے جی ایکٹیویٹی شامل کرنی چاہیے. آپ جب کے آ رہے ہیں کوئی ریحان اسکول میں اور کوئی اور فنکشنز ہوتے ہیں یا پھر صرف مطلب یہی کام ہوتا ہے, یا مطلب جیسے اسپورٹس گالا وغیرہ یا پھر کوئی ٹرپس وغیرہ؟ نہیں فی الحال یہاں پر جو ہے اب یہ جو ایفیٹ میں کیمپس کھلا ہے اس کو بھی کچھ وقت ہی ہوا ہے. فی الحال یہاں پر مسجد میں ہے, یہ عارضی طور پر جی یہاں پر ہے. اس کے لیے بھی الگ اسکول ہوگا, بلڈنگ ہوگی اس کے لیے, پھر وہاں پر ایک شفٹ ہوگا. اس کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی فنکشن وغیرہ رکھے جائیں, لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں. یہ مسجد ہے, ہم نے مسجد کے جو ہے آداب کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ بھائی یہ مسجد میں ہم ایسا کام نہ کر دیں یا کوئی جی ایسا کام نہ کریں جس سے مسجد کی بےدبی ہو. اس لیے یہاں پر جو ہے صرف فی الحال بچوں کی پڑھائی بری توجہ دیا جاتا ہے. کوئی چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ بھی ان کو 1.5 گھنٹہ دے کر تاکہ وہ گھر جا سکیں. یہاں پر مسجد میں جو ہے شور نہ ہو یا مسجد کا ماحول خراب نہ ہو. جیسے اب آپ نے بتایا کہ آپ کو ادھر سانگ پوسٹ بنانا, اسٹوری پوسٹ بنانا, کینوا پوسٹ بنانا, کافی کچھ سکھاتے ہیں. تو آپ کو کون سا ایسا اسکل لگتا ہے جس میں آپ زیادہ بہتر ہونا چاہتے ہیں, جس میں آپ مطلب 100% پرو ہونا چاہتے ہیں؟ کوڈنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, کیا چیز آپ کو اچھی لگتی ہے؟ فی الحال تو مجھے ابھی اس میں اتنا خاص فاؤنڈیشن والی بک میں جو اتنا خاص مجھے کچھ لگا نہیں ہے. سوائے انٹرویو کے مجھے جو ہے کافی انٹرسٹنگ لگا ہے. تو ہم کسی سے جی بات کرتے ہیں انٹرویو میں اس کے بارے میں, اس کی زندگی کے بارے میں, لائف کے بارے میں, جو اس نے سیکھا ہے ابھی تک اس بارے میں. یہی جو ہے مجھے انٹرویو ابھی تک اچھا لگا. باقی ٹاسک ہیں وہ نارمل ہی تھے, میرے لیے وہ اتنا خاص کام نہیں تھا جس کو میں چاہوں کہ بھائی اس میں اس کو لے کے چلوں گا تو میں 100%. ایسا ابھی کچھ ہے نہیں. آپ کا کیا کہنا ہے دوسروں سیکھنے, مطلب آپ جب سیکھ رہے ہیں تو آپ آگے سکھاتے ہیں یا پھر آپ بس کہتے ہیں کہ اتنا سیکھو جتنا ہو سکتا ہے؟ دوسروں کی مدد نہیں کرنی چاہیے یہ اپنے کام میں, یا پھر اپنے پہ زیادہ فوکس رکھنا چاہیے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے ایک آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ کے پاس علم آ گیا, اس علم کے اوپر صاف بن کے بیٹھ جائے. ایسا جی نہیں کرنا چاہیے. علم بانٹنے سے ہمیشہ بنتا ہے. جب بھی آپ یہاں پر مجھے دیکھو ریحان اسکول میں بچے کو جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ سب بچوں کو سکھاتے ہیں, وہ ان کا مقصد یہی ہے ریحان اسکول میں, تاکہ وہ بچے اپنا علم بانٹ سکیں. جب آپ کسی کے ساتھ اپنا علم شیئر کرو گے, ان کو سکھاؤ گے, جو کسی میں مشکل آ جائے بات ہے آپ خود سیکھو گے. آپ کو پتہ لگے گا بھائی اچھا وہ یہ مسٹیک کر رہا ہے تو میرے سے بھی یہ مسٹیک ہو سکتی ہے, تو اگر وہ یہ مسٹیک کر رہا ہے تو میں یہ مسٹیک نہیں کروں گا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں ہماری تھوڑی کمزور ہوتی ہیں, جب ہم بچوں کے ساتھ وہ ریپیٹ کرتے ہیں وہ چیزیں ہماری پکی ہو جاتی ہیں. اس لیے میرا یہی فوکس ہے کہ بچوں کی چیزیں آپ کو آتی ہے تو آگے جو ہے نا کسی کے ساتھ شیئر کر دو. بچوں کے ساتھ یا آپ کا بھائی ہے, گھر والے ہیں, کسی کے ساتھ بھی آپ کو شیئر کر دو تاکہ وہ جو ہے نا اس کو برکت آ جائے, آپ کو چیزیں مطلب اس چیز میں پکے ہو جائیں. اگر آپ کو ریحان اسکول کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا لفظ ہوگا؟ میرے حساب سے تو یہ ہے, ریحان اسکول اے آئی اکیڈمی ہے, تو میں یہی سے نام دوں گا, اے آئی کی اکیڈمی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں یہاں پہ کیا ہے. تو ویورز, آپ یہ ہمارا آخری سوال ہے کہ آپ جاتے جاتے اپنے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ریحان اسکول کے بارے میں؟ بالکل, میں ویورز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ جو ہے میرے حساب سے جو ہے آپ کو اپنی اس عمر میں کوئی بچہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, کوئی بڑا ویڈیو دیکھ رہا ہے, مثلا آپ کو 15 سال کا ہے, 9ویں کلاس میں, میٹرک میں, تو وہ اس کو جی جو ہے ساتھ ساتھ اپنی اسکل پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. وہ اس کو اسکل بھی سیکھنی چاہیے. تو کسی بھی عمر میں اگر وہ کبھی سیکھے گا تو آگے آنے والے وقت میں جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے. اگر آپ ریحان اسکول میں آ سکتے ہیں, یہاں پر آ کے سیکھیں کہ آن لائن کلاس لے سکتے ہیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ کسی اور انسٹیٹیوشن میں جی چلے جائیں, کسی اور اکیڈمی میں چلے جائیں, وہاں جا کے آپ اس سے لازمی سیکھیں. اگر آپ
وہاں بھی زیادہ اتنا بھی فون نہیں کر سکتے. آپ یوٹیوب پہ اس کے بارے میں سرچ کریں, آپ یہ چیزیں سیکھیں تاکہ آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں, نہ کہ آپ اس میں اتنا پیچھے رہ جائیں کہ یہ آپ کے لیے جو ہے آگے آنے والے وقت میں سر درد بن جائے. آپ بولیں کہ بھائی اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں, اسے کرنا کیسے ہے, کیسے ہوگا. تو مطلب پریشان ہونے کے بجائے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, ان چیزوں کو جی. سیکھ کے. میرا یہ پیغام ہے آپ کے لیے. سو ویورز, آج یہ تھا ہمارا آج کا انٹرویو. سب سے پہلے ہم شکریہ سلمان بن شاہد کا کرنا چاہیں گے کہ وہ آج انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, ہمیں انٹرویو دیا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.